یہ شہر کبھی محفوظ تھا، رحم تھا، رزق تھا، آسانی تھی۔ پھر ایک دن گناہ صرف چھپ کر نہیں ہوا، وہ عزت بنا دیا گیا، وہ مجلس کا فخر بنا دیا گیا۔ ایک نبی نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ سے ڈرو۔ لوگ ہنسیں۔ رات آئی، دروازے بند ہوئے اور آسمان نے فیصلہ سنا دیا۔ صبح تک زمین اپنی جگہ پر نہیں رہی۔ یہ کہانی صرف تباہی کی نہیں، یہ اس لمحے کی ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ عذاب کبھی نہیں آئے گا۔ یہ دنیا ایک بار پہلے بھی یہاں تک پہنچی تھی۔ اس وقت بھی لوگ تھے، گھر تھے، بچے تھے۔ رات کو نیند آتی تھی، صبح کو کام ہوتا تھا، زندگی چل رہی تھی، روز مرہ جیسی، بالکل عام۔ اور اللہ کا ایک بندہ ان کے درمیان کھڑا تھا، سالوں سے، دہائیوں سے، اپنی پوری زندگی لگا کے، پر کوئی سنتا نہیں تھا۔ لیکن وہ روز اٹھتا تھا اور روز کوشش کرتا تھا۔ یہ کہانی اس نبی کی ہے اور اس قوم کی جو سننا نہیں چاہتی تھی۔ سمجھو، پہلے یہ لوگ خالی نہیں تھے۔ اللہ نے انہیں زمین دی تھی، پانی دیا تھا، فصل دی تھی، جسم دیا تھا، عقل دی تھی، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے انہیں ایک نبی دیا، سیدھا، زندہ، انہی میں رہنے والا، انہی کی زبان بولنے والا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ قرآن بتاتا ہے لوط علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا اور اللہ نے انہیں اس بستی کی طرف بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ یہ نعمت کم نہیں تھی، لیکن اس قوم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ قرآن نے ایک بات سیدھی کہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، قرآن میں محفوظ، اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ کیا تم وہ فاحشی کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ یہ عام برائی نہیں تھی، یہ ایک نیا گناہ تھا، ایک ایسی حد جو انسانیت نے اپنی پوری تاریخ میں پہلے کبھی نہیں لانگھی تھی، اور یہ قوم اس حد کو کھلی آنکھوں سے فخر کے ساتھ لانگ رہی تھی۔ کوئی بھی قوم ایک دن میں تباہ نہیں ہوتی۔ پہلے ایک چیز ہوتی ہے، بہت چھوٹی، اندھیروں میں، کوئی نہیں دیکھتا، یا دیکھتا ہے تو آنکھیں پھیر لیتا ہے، پھر وہ چیز عام ہوتی ہے، پھر وہ چیز فخر بن جاتی ہے۔ یہ قوم بھی ایسی ہی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ لوگ مسافروں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، انہیں لوٹنا، انہیں تکلیف دینا، انہیں شرمندہ کرنا، یہ ان کی عادت بن چکی تھی، اور اس عادت کے پیچھے ایک اور برائی اور گہری پل رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان میں رہتے تھے۔ یہ بات سوچو، وہ ان کے درمیان تھے، وہ انہیں جانتے تھے، وہ ان کی زبان بولتے تھے، وہ ان کی حرکت دیکھتے تھے، اور روز صبح اٹھ کے وہ اپنے رب کا حکم لے کے نکلتے تھے اور لوگوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے سالوں تک۔ قرآن میں ہے سورہ العنکبوت میں کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے۔ یہ کوئی علامت نہیں تھا، یہ کوئی مجاز نہیں تھا، یہ کوئی عام نصیحت نہیں تھی، یہ سیدھا، صاف، واضح الفاظ تھے۔ انہوں نے جواب دیا، لیکن جواب میں کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی۔ ان کا جواب صرف تکبر تھا، صرف مذاق تھا۔ یہ آدمی سالوں سے یہی کہہ رہا ہے، کوئی عذاب نہیں آیا۔ اگر اللہ کو اتنا ہی برا لگتا تو اب تک کچھ ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے
जब गुनाह इतना पुराना हो जाता है कि वो सच लगते लगते यकीन बन जाता है। ये वो सोच है जो हर डूबने वाली कौम में होती है। अजाब का ना आना उनके लिए अल्लाह की रजा नहीं थी, वो अल्लाह की मोहलत थी। लेकिन मोहलत हमेशा नहीं रहती। और फिर वो बात जो सबसे गहरी तकलीफ देती है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में उनकी अपनी बीवी थी। कुरान ने उस पर सीधा हुक्म सुनाया। सूरे अल तहरीम में अल्लाह ने फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअता नूहिन व इम्रअता लूत। अल्लाह ने उन लोगों के लिए मिसाल दी जो काफिर हुए, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। ये दोनों दो नबियों के धर में थीं और दोनों उनके खिलाफ थीं। तारीख की किताबों में आता है और अल्लाह बेहतर जानता है कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कौम को खबर देती थीं। जब भी कोई मुसाफिर लूत अलैहिस्सलाम के घर आता, वो किसी न किसी तरह कौम को बता देती। घर के अंदर दुश्मन, एक नबी अपनी चार दीवारी में भी महफूज नहीं था। इस बस्ती में सब एक जैसा नहीं सोचते थे। कुछ थे जो खुलेआम गुनाह करते थे, बिना शर्म के, बिना खौफ के, रात को दिन को। कुछ थे जो देखते थे और चुप रहते थे। उन्हें पता था ये गलत है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं थी, या सोचते थे हमारे बोलने से क्या होगा, या सिर्फ अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। और कुछ, बहुत कम, वो जो लूत अलैहिस्सलाम के साथ थे, जो समझते थे और मानते थे। कुरान ने बताया, लूत अलैहिस्सलाम के घर में सिर्फ एक मोमिन था। वो इनकी एक बेटी या एक घर का फर्द। बाकी सब या गुनाह में थे या खामोशी में, और अल्लाह के यहां खामोशी भी हिसाब में आती है। फिर वो वक्त आया जो हर बार आता है जब अल्लाह का फैसला हो जाता है। कुरान में है, सूरह हुद में, कि अल्लाह के फरिश्ते पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, इंसानी शक्ल में, मुसाफिर की तरह, खुशखबरी लेकर, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना रखा उनके आगे, भुना हुआ बछड़ा। लेकिन वो हाथ नहीं लगाते थे खाने को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा और फिक्र हुई। और फिर फरिश्तों ने बताया, हम कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ जा रहे थे, आजाब लेकर। कुरान में है, सूरह हुद में, फलम्मा ज़हबा अन इब्राहीमा अर्रौ वजाअतहु अलबुशरा युजादिलूना फी कौम लूत। जब इब्राहीम से डरा दूर हुआ और खुशखबरी आ गई, वो लूत की कौम के बारे में झगड़ने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो लूत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, जो उनके दोस्त थे, उनके लिए बोलने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कोशिश की थी फरिश्तों से उनके लिए। फरिश्तों ने कह दिया, अल्लाह का फैसला हो चुका है, अब ये नहीं बदलेगा। कुछ फैसलों को मोहब्बत भी नहीं रोक सकती, कुछ फैसलों को दुआ भी नहीं बदल सकती जब वक्त गुजर जाता है। फरिश्ते चल दिए। वो इंसानी शक्ल में थे, नौजवान, खूबसूरत, मुसाफिर लगते थे। और लूत अलैहिस्सलाम जब उन्हें देखा, कुरान ने बताया, उनका दिल भर आया। सूरह हूद में है, सा बिहिम वदक्का बिहिम ज़रआ। उनका दिल तंग हो गया, उन्हें फिक्र हो गई, उन्हें घबराहट हुई। वो जानते थे इस बस्ती में कोई मुसाफिर महफूज नहीं। वो जानते थे ये कौम इन नौजवानों को देख के नहीं रुकेगी। वो जानते थे आज की रात मुश्किल होगी। लेकिन वो फरिश्ते थे और लूत अलैहिस्सलाम को ये नहीं पता था। सोचना एक बार इस लम्हे को, एक नबी अपने घर में मुसाफिरों को लेकर बैठा है। अंदर दरवाज़ा बंद, रात हो रही है, और वो जानता है कौम को खबर हो जाएगी। वो क्या करेगा? कौन उसकी मदद करेगा? कोई नहीं है। गली में कोई दोस्त नहीं, शहर में कोई साथी नहीं। कुरान में है, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़ा यौमुन असीब। ये एक सख्त दिन है। 3 अल्फाज, लेकिन इन 3 अल्फाजों में सालों का अकेलापन था, सालों का दर्द था। एक नबी का दिल इन 3 अल्फाजों में समेट दिया गया है। खबर फैल गई। तारीख की किताबों में आता है और अल्लाह बेहतर जानता है कि कौम को पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में मुसाफिर हैं, नौजवान हैं, और वो चल दिए।
धीरे नहीं, शर्मिंदा नहीं, रुके नहीं। वो खुशी से चल रहे थे, जैसे कोई मेला हो, जैसे कोई खुशी का मौका हो। ये देखना, ये वो मंजर है जो दिल को रोक देता है। एक कौम अपनी तबाही की तरफ खुद अपने पांव चल के जा रही है। लूत को बार बार मना किया, आज फिर नहीं मानेंगे हम। ये वो कौम थी जिसे शर्म छोड़ चुकी थी। जब किसी कौम की शर्म मर जाती है, वो खुद अपनी तबाही की तरफ दौड़ते हैं। कोई उन्हें रोकता नहीं, कोई उन्हें धक्का नहीं देता, वो खुद जाते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे पर खड़े हो गए। वो अकेले थे, घर के अंदर मुसाफिर, बाहर कौम। कुरान में है सूरह हुद में कि लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाक हैं। अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों को शर्मिंदा मत करो। उन्हें समझाया, उन्हें रोका। ये एक नबी की आखिरी कोशिश थी। उन्होंने बेटियों का नाम लिया, उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, उन्होंने शर्म दिलाने की कोशिश की। कौम ने सुना और फिर भी आगे बढ़ी। तू जानता है हमें तेरी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं, और तू जानता है हम क्या चाहते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो कुरान ने महफूज किए ताकि हम सुन सकें, ताकि हम समझ सकें ये कौम कहां तक पहुंची थी। और तब अंदर से आवाज आई। कुरान में है सूरह हूद में, फरिश्तों ने कहा, या लूत इन्ना रुसुल रब्बिका लन यसिलु इलैक। ऐ लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुझ तक नहीं पहुंच सकते। लूत अलैहिस्सलाम जो घंटे से अकेले खड़े थे, जो सालों से अकेले लड़ रहे थे, उन्हें उस वक्त पता चला वो अकेले नहीं थे। फरिश्तों ने कौम की तरफ देखा और उनकी आंखें अंधी कर दी गईं। कुरान में है सूरह अल कमर में, वलक़द रावदूहु अन दैफ़िही फ़तमस्ना आयुनहुम। उन्होंने लूत के मेहमानों के बारे में बुरा इरादा किया तो हमने उनकी आंखें मिटा दी। वो अंधेरे में हाथ मार रहे थे, भीड़ में से आवाजें आ रही थी, लेकिन अब वो कुछ देख नहीं सकते थे और उन्हें पता नहीं था वो अब किसी चीज के काबिल नहीं रहे। फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। सूरह हूद में है, फरिश्तों ने कहा, फ़अस्री बिअहलिका बिक़ित्इन मिनल लैली वला यल्तफ़त मिनकुम अहद। रात के एक हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे ना देखे। सिर्फ इतना था हुक्म। रात के अंधेरों में खामोशी से, बिना रुके, बिना देखे। और एक बात और थी जो फरिश्तों ने कह दी थी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उनके साथ नहीं जाएगी। कुरान ने महफूज कर दिया, अल्लाह ने फैसला कर दिया था। वो उन्हीं लोगों में से थी जिन पर अजाब आना था। एक नबी अपनी बीवी को पीछे छोड़ के रात के अंधेरों में निकल रहा है। ये दर्द का वो हिस्सा है जो अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम आगे थे, उनके साथ कुछ लोग, कम, बहुत कम। पीछे वो बस्ती थी, वो घर थे, वो लोग थे, वो रात, वो अंधी कौम थी जो अभी भी हाथ मार रही थी, जो अभी भी आवाजें दे रहे थे, जो अभी भी समझ नहीं पाए थे क्या होने वाला था। और कहीं पीछे एक औरत थी। फरिश्तों ने कह दिया था, सुबह तक दूर निकल जाओ, और वो चलते रहे रात के अंधेरों में। सूरह अल हिज्र में है, फरिश्तों ने कहा, इन्ना मुंजिलूना अला अहले हाज़िहिल क़रियति रिज्ज़म मिनस समाई। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब उतारने वाले हैं। आसमान से सुबह आने वाली थी। फिर वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। कुरान में है सूरह हूद में, फलम्मा जा अमरुना जाअलना आलियाहा साफिलहा। जब हमारा हुक्म आया, हमने उस बस्ती को उल्टा कर दिया, ऊपर का नीचे। जमीन ऊपर उठी, फिर सीधी नीचे आई, और फिर ऊपर से पत्थर। कुरान में है, वामतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिन मंदूद। और हमने उन पर पत्थर बरसाए, तह दर तह,
एक के बाद एक। सूरह अल हिज्र में है, हर पत्थर पर निशान था, हर पत्थर एक शख्स के लिए। कोई गलती नहीं थी, कोई ज्यादती नहीं थी, कोई बेगुनाह पर नहीं गिरा। हर चीज बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कामिल। शायद एक ही लम्हे का पता चला, फिर कुछ नहीं। कुरान ने तफसील नहीं बताई, सिर्फ हुक्म बताया। कोई तूफान नहीं, कोई आग नहीं, कोई बिजली नहीं, बस एक हुक्म था और जमीन ने मान लिया। और वो औरत जो साथ चली थी लेकिन दिल में नहीं थी, कुरान ने कहा वो भी उन्हीं में से थी जिन पर अजाब आया। तारीख की किताबों में आता है और अल्लाह बेहतर जानता है कि वो पीछे मुड़ी एक बार, सिर्फ एक बार, और वो वहां रुक गई। पीछे देखना सिर्फ एक छोटी सी हरकत थी, लेकिन वो हरकत उस दिल की आखिरी गवाही थी जो कभी साथ था ही नहीं। सुबह हुई, वहां कुछ नहीं था। वो बस्ती जो थी, वो लोग जो थे, वो घर जो थे, सब कुछ नहीं रहे। कुरान में है सूरह अल-अनकबूत में, वतरकना फीहा आयतन लिल्लज़ीना यखाफून अल अज़ाब अल अलीम, और हमने उसमें एक निशान छोड़ा उनके लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। निशान छोड़ा गया ताकि देखा जाए, ताकि सोचा जाए। सुबह हुई, हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो रात भर चले थे रुके। पीछे मुड़ा नहीं, हुक्म था पीछे मत देखो, लेकिन कदम रुक गए। रात भर के सफर के बाद एक नबी, खुला आसमान और खामोशी। वो बस्ती जो उनकी जिंदगी थी, जो उनका घर था, जो उनके सालों की मेहनत थी, वो अब नहीं थी। वो बस्ती जो थी नहीं रही, वो घर जो थे नहीं रहे, वो लोग जो थे नहीं रहे। कुरान कहता है निशान छोड़ा गया ताकि लोग देखें। जमीन ने निगल लिया और निशान छोड़ दिया ताकि आने वाली नस्लें देख सकें, ताकि सोचें, ताकि समझें। तो अब तुमसे सीधा पूछना है, तुम इस वक्त इन तीन लोगों में से कौन हो? वो जो गुनाह में है और खुश है, वो जो देखता है और चुप है, या वो बहुत कम जो लूत अलैहिस्सलाम के साथ निकला रात के अंधेरों में बिना पीछे देखे? और अगर तुम अभी तक जवाब नहीं दिए तो शायद तुम्हारा जवाब मिल चुका है। अगर आपको ये पुरानी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और कमेंट में लिखें कि अगले वीडियो में कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में कुल मोमिनीन को याद रखें।